السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ ریاست کو مالیاتی استحکام دینے، فائنانس کمیشن سے مجلس کی نمائندگی، مرکزی محاصل سے زیادہ فیصد ادائیگی کی مانگ، اکبر الدین اویسی کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ پارٹی بدلنے والے ارکان اسمبلی کے سلسلے میں 4 ہفتوں میں فیصلہ لیا جائے، ریاستی اسمبلی اسپیکر کے دفتر کو تلنگانہ ہائی کورٹ کی ہدایت۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ہینڈلوم ٹیکنالوجی کا افتتاح۔ انسٹیٹیوٹ کا مقصد ہینڈلوم ٹیکنالوجی کی تکنیک سے متعلق جدید تربیت اور تعلیم فراہم کرنا ہے۔ بنکروں کے قرض معافی کی ذمہ داری حکومت پر، وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ سی وی آنند نے حیدرآباد کے کمشنر پولیس کی حیثیت سے لیا جائزہ، وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر۔ گنیش نمرجن اور میلاد جلوس کے لیے مؤثر اقدامات کو یقینی بنانے کا عزم۔ بجاج الیکٹرانکس کو چارج بیک کے ذریعے 4 کروڑ روپے کا چونا لگانے والی 13 رکنی راجستھانی ٹولی گرفتار، 1 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ضبط۔ ہلدی کے پیکٹس میں گانجے کی فروخت کا ریاکٹ بے نقاب، 10 پیکٹس ضبط۔ دھول پیٹ کی خاتون تحویل میں۔ اور حیدرآباد اور اس کے نواحی علاقوں میں گنیش مورتیوں سے لڈو چرائے جانے کے واقعات، گنیش پنڈال سارقوں کا آسان نشانہ۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیومیکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیومیکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیومیکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیومیکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ بسائڈ سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ کیومیکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے ماون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، ماون گارڈن ٹاور سالارجن کالونی ٹولی چوکی، ماون ہائٹس ملے پلی، ماون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، ماون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، ماون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، ماون پرل اور ماون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ماون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، ماون آشیانہ ملے پلی، ماون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔
सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 16वीं फाइनेंस कमीशन से कहा है कि वो तेलंगाना को मरकजी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल मालियाती एआनत करे। रियासत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ समाज के पिछड़े तबकात, दर्ज फहरिस्त अक़वाम, कबाइल, पसमानदा तबकात, अक़लियतें, माजूरीन वो महरूमी का शिकार तबकात की फलाह व बहबूद के लिए रियासत को मालियाती इस्तेहकाम, महसूल व मरकजी मुहासिल से ज़्यादा फीसद इजरा करे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत में मजलिसी वफ़द जो रुकन असम्बली अहमद बलाला और साबिक़ रुकन कौंसल सैयद अमीनुल हसन जाफरी पर मुश्तमिल था, ने फाइनेंस कमीशन को 10 सफ़हात पर मुश्तमिल एक याददाश्त भी हवाले की है। मोतमद मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी की दस्तखत से इस याददाश्त में 2014 से रियासत के क़याम से लेकर आज तक की मालियाती हालत का अहाता किया गया है। 2014 में रियासत का मालियाती खसारा सिर्फ 75,000 करोड़ रुपए था। 10 साल के अरसे में यह बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपए से मुतजाविज हो गया है। रियासत की तकसीम के तहत तेलंगाना को जो मरकजी मालियाती एआनत मिलनी थी वो नहीं दी गई। रियासत के मालियत का इन्हिसार महदूद होकर रह गया है। अकबरुद्दीन अवैसी ने रियासत के मालियाती मौक़िफ़ और मरकज़ की जानिब से रियासत की खातिर ख्वाह फंडिंग न किए जाने पर कमीशन को मुतवज्जे किया है। मजलिसी वफ़द ने 14वें और 15वीं फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात के हवाले से रियासत को जायज़ मुहासिल की वसूल और फंड्स के अलॉटमेंट में कमी की निशानदही करवाई है। डॉक्टर अरविंद की क़यादत पे मरकजी फाइनेंस कमीशन रियासत के दौरे पर है। कमीशन ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के अलावा दीगर इदारों के मेयर, सुदूर नशीन, ग्राम पंचायतों के अवामी नुमाइंदों के साथ भी अपने इजलास मुनक्किद किए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी का पीर को इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इंस्टीट्यूट के क़याम का मकसद रियासत में हैंडलूम टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना है। यह इंस्टीट्यूट हैंडलूम सनत की तरक्की की सिमत एक अहम कदम है। इंस्टीट्यूट का मकसद हैंडलूम टेक्नोलॉजी की तकनीक से मुताल्लिक़ जदीद तरबियत और तालीम फराहम करना है। इस सनत को जदीद टेक्नोलॉजी से मरबूत करते हुए रिवायती फ़नून के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के तुलबा की हौसला अफजाई के लिए माहाना 2,500 रुपये की रकम दी जा रही है। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि बुनकरों के कर्ज मुआफ़ी के लिए 30 करोड़ रुपये उनकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को कर्ज मुआफ़ी के सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात की भी हिदायत दी है। इन्होंने ये भी कहा है कि इंदिरम्मा स्कीम के तहत बुनकरों और दूसरे तबकात को भी मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी और उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा है कि तेलंगाना के तुलबा को पहले IIHT में तरबियत के लिए उड़ीसा और आंध्रा जाना पड़ता था, लेकिन अब रियासत में इसका अमल हो रहा है। तेलंगाना में 10 साल से ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। हमने वज़ीर आज़म को तवज्जो दिलाई थी और इसी के तनाजुर में इस इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया गया है। इन्होंने कहा है कि तुलबा को हुनरमंदी के लिए स्किल यूनिवर्सिटी भी कायम की गई है। वज़ीर आला ने इसके चेक्स भी हवाले किए। इस मौके पर रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव, रुकन असम्बली मजलिस मोहम्मद माजिद हुसैन, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో మంత్రివర్యులు పెద్దలు శ్రీ తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారి నేతృత్వంలో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శైలజ రామయ్య గారు ఈనాటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఇందులో ప్రధానంగా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీ కళాశాలను ప్రారంభించి అదేవిధంగా నేతలకు రావాల్సిన బకాయిలు కానీ నిధులను కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి విడుదల చేయించాలని
ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ కార్యక్రమంలో నాంపల్లి శాసనసభ్యులు మాజిద్ హుసేన్ గారు, అదేవిధంగా మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ ఎరావతి అనిల్ గారు, హైదరాబాద్ నగర మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి గారు, వరంగల్ నగర మేయర్ శ్రీమతి గుండు సుధారాణి గారు, చాలా మంది నేతన్నలు, వారికి సంబంధించిన నాయకులు, 33 జిల్లాల నుంచి తరలి వచ్చిన చేనేత కార్మికులు, నేతన్నలు అందరూ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను. మా మంత్రి గారిని, మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. వేలాది మంది నేతన్నలను కలుసుకునే ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని లలిత కళా తోరణంలో ఏర్పాటు చేసి ఈ సంతోషమైన సమయంలో మీ అందరినీ కలిసి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీని ప్రారంభించుకోవడం నాకు చాలా సంతోషకరమైన వార్త. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీ ఈరోజు మన విద్యార్థులు చేరాలి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరుకైనా వెళ్ళాలి, లేదా ఒడిశా రాష్ట్రానికైనా పోవాలి. ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో, మన నగరంలో, మన హైదరాబాదులో, మన తెలంగాణలో ఉండాల్సిన ఇన్స్టిట్యూట్ అనుమతి ఇవ్వాల్సిన కేంద్ర ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాలైన చర్యలు చేపట్టకపోవడంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత నేతన్నల జీవన గతులు, వాళ్ళ స్థితిగతులను తెలుసుకోవాలన్న ఆలోచనతోటి సమీక్షా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఈ అంశం నా దృష్టికి రావడం జరిగింది. बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए अरकान असेंबली को धक्का लगा है. तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती असेंबली स्पीकर के ऑफिस को हिदायत दी है कि पार्टी बदलने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ 4 हफ्तों में फैसला लिया जाए. वाज़ेह है कि डी नागेंद्र, कड़ियम श्रीहरि, टी वेंकटराव, प्रकाश गौड़, जी महिपाल रेड्डी, के यादయ్య, ए गांधी, बी कृष्णा मोहन रेड्डी, संजय कुमार, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए थे. इस सिलसिले में बीआरएस के अरकान असेंबली के विवेकानंद गौड़, पी कौशिक रेड्डी और बीजेपी के ए महेश्वर रेड्डी ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी कि इन पार्टी बदलने वाले अरकान असेंबली को नाअहल करार दिया जाए. साबिक वजीर और बीआरएस के लीडर हरीश राव ने पार्टी बदलने वाले अरकान असेंबली से मुताल्लिक तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया. मीडिया के लिए जारी प्रेस नोट में हरीश राव ने कहा है कि अदालत का फैसला कांग्रेस के लिए धक्का है. कांग्रेस ने गैर जमहूरी तरीक़ेकार पर अमल करते हुए बीआरएस के अरकान असेंबली को कांग्रेस में शामिल किया था. अदालत का फैसला जमहूरियत की जीत है और इससे दस्तूर के इख्तिदार को इस्तेहकाम मिलेगा. इन्होंने ये भी कहा है कि इन हल्क़जात में अब ज़िमनी इंतखाब नागुज़ीर है और हमें उम्मीद है कि बीआरएस पार्टी इन हल्क़जात में कामयाब होगी. हरीश राव ने कहा है कि हमें स्पीकर पर भरोसा है कि वो अदालत के अहकाम की पाबंदी करते हुए फैसला देंगे. दूसरी तरफ बीआरएस के अरकान असेंबली पी विवेकानंद रेड्डी और कौशिक रेड्डी ने भी बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असेंबली को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया. मीडिया से बात करते हुए इन लीडर्स ने कहा है कि स्पीकर हाईकोर्ट के फैसले का एहतराम करे. कांग्रेस पार्टी को याद करना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हिमायत करने वाले कांग्रेस के 4 एमएलएस को स्पीकर ने नाअहल करार दिया था. कांग्रेस कौमी पार्टी की तरह काम नहीं कर रही बल्कि एक ज़ैली इलाकाई पार्टी की तरह काम कर रही है. राहुल गांधी आइन को थामकर मुल्क भर में घूमते हैं लेकिन तेलंगाना में इन्हराफ की सियासत पर जवाब नहीं देते. राहुल गांधी को इन्हराफ के अपने अल्फाज का एहतराम करना चाहिए. इन लीडर्स ने कहा कि 10 हल्क़जात में ज़िमनी इंतखाबात यकीनी हैं और डी नागेंद्र को भी शर्मनाक शिकस्त होगी.
रुकन असेंबली के पी विवेकानंद ने कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला बीआरएस की पहले फतेह है। इससे पहले कि अदालत दोबारा मुदाखलत करे, असेंबली स्पीकर को फौरी 10 एमएलए को नाअहल करार देना चाहिए। स्पीकर असेंबली के वक़ार का एहतराम करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली अहमद बलाला का रियासती मुक़न्नना की पब्लिक अकाउंट कमेटी में इंतखाब अमल में आया है। रियासती मुक़न्नना की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 13 रुकनी इस कमेटी के सदरनशीन एक गांधी होंगे। इस कमेटी में 9 अरकान का असेंबली से और 4 का काउंसिल से इंतखाब हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अलावा तखमीना कमेटी की भी तश्कील अमल में लाई गई है। इस 13 रुकनी कमेटी के सदरनशीन एन पद्मावती रेड्डी होंगी। इसमें असेंबली से 9 और काउंसिल से 4 अरकान मुंतखब हुए हैं। अवामी शोबेजात से मुतालिक पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में मजलिस के 2 अरकान मुंतखब हुए हैं। ये कमेटी भी 13 रुकनी होगी। के शंकर इसके सदरनशीन होंगे। 9 अरकान असेंबली में मजलिस के कौसर मोहिउद्दीन और 4 अरकान कौंसल में मजलिस के मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी का इंतखाब अमल में आया है। स्पीकर असेंबली व सदरनशीन कौंसिल की तौसीक से साल 2024-25 के लिए इन कमेटियों की तश्कील का ऐलान किया गया है। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आम्मतुल मुस्लिमीन मजहबी इदारों रज़ाकाराना तंजीमों से कहा है कि वो वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत में ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी को ज्यादा से ज्यादा पैगामात रवाना करें। इस सिलसिले में आइम्मा मसाजिद व खतीब साहिबान से भी इन्होंने अवामी शऊर बेदारी की अपील की है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से दिल्ली में ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के सामने बिल की मुखालिफत में मुकदमा पेश किए जाने पर इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अरकान बोर्ड, माहिरीन कानून व सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के सलाह व मशवरे से रियासती वक्फ बोर्ड ने पार्लिमानी कमेटी के सामने बिल की मुखालिफत में अपने दलाइल पेश किए हैं। इन्होंने कहा है कि बोर्ड के अरकान मौलाना अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा, मौलाना बंदगी बादशाह, माहिर कानून एम.ए. मुकीद व दूसरों ने कमेटी को बिल के नकाइस से वाकिफ करवाया। बिल के मुख्तलिफ नुकात का अहाता किया गया। कमेटी को पहले सॉफ्ट कॉपी रवाना की गई, बाद में शख्सी हाजिरी के दौरान दस्तावेजी तौर पर बिल की मुखालिफत में दलाइल पेश किए गए हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तिदाई ब्रांचेस के सुदूर और सेक्रेटरीज और सरगर्म अराकीन पर जोर दिया है कि वो 2 रोजा जश्न रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हस्ब रिवायत कामयाब और तारीख साज बनाने के लिए मुतहर्रिक हो जाएं। दारुस्सलाम में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि मजलिस के इस जलसे का शुमार मुल्क के बड़े जलसों में होता है। इसी मुनासिबत से इसे कामयाब करना हम सब की जिम्मेदारी है। इजलास से सदर इस्तकबालिया कमेटी जाफर हुसैन महराज ने भी खिताब किया। मजलिसी अराकीन असेंबली व कौंसिल और अराकीन बलदिया के अलावा इब्तिदाई मजालिस के सैकड़ों जिम्मेदार इजलास में शरीक थे। रुकन असेंबली चारमीनार मीर जुल्फिकार अली ने दबीरपुरा डिवीजन के इलाके का दौरा किया है। उनके हमरा दबीरपुरा डिवीजन के रुकन बलदिया आलमदार वाला चाही और मजलिस के जॉइंट सेक्रेटरी एस.ए. अनवर मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात करके उनके मसाइल की समाअत की, जिसमें पीने के पानी की अदम सरबराही और प्रेशर में कमी शामिल है। इन्होंने महकूमे आबरसानी के जनरल मैनेजर को इसकी शिकायत की, जिस पर इन्होंने बताया कि लाइनमैन की तब्दीली की वजह से यह मसला रूनुमा हुआ है, जिसकी जल्द यकसोई की जाएगी। अलावा अजी इन्होंने सुल्तानपुर में 50 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई सीसी रोड के मुकम्मल शुदा कामों का भी मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा सुधीर बाबू ने एदोला आबाद और कापरा की झीलों का दौरा करके गणेश मूर्तियों के निमज्जन का जायजा लिया। बाद में इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम करें। इन्होंने बताया कि गणेश नवरात्रि को पुरअमन माहौल में मनाने के सिलसिले में तमाम एहतियाती तदाबीर किए जा रहे हैं।
अलावा अजीज झीलों के करीब क्रेन्स, लाइटिंग और दूसरी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर डीसीपी पद्मजा के अलावा दूसरे मौजूद थे। बाद में सुधीर बाबू ने रचाकुंडा आउटर विंग के अमले में 500 व्हाइट कैप्स तकसीम किए। इन्होंने बताया कि मज़कूरा ट्रैफिक अमले की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाएगी, जो ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने आज अपने ओहदे का जायजा लिया। दूसरी मर्तबा सीवी आनंद हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर बने हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी और मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। नए कमिश्नर पुलिस ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से भी इज़हार तशक्कुर किया। सीवी आनंद ने ओहदे का जायजा लेने के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। वजीर आला ने सीवी आनंद से नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। शहर की अमन व कानून की सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल की इत्तला मिली है। आज मैं हैदराबाद कमिश्नर पुलिस, हैदराबादी में कोतवाल भी बोलते हैं, तो दूसरी बार मैं चार्ज लिया हूँ। स्टेट गवर्नमेंट और वजीर उनको मैं शुक्रिया अदा पेश करता हूँ। अभी हम आप सबको पता है, अभी गणेश का फेस्टिवल चल रहा है, उसकी बंदोबस्त के बारे में सब लोग यहाँ पर बिजी हैं और 17 तारीख को निमज्जन होने वाला है। उसके तुरंत पश्चात 19 तारीख को मिलाद का जुलूस निकलने वाला है। तो इसके बारे में सिटी पुलिस पूरे इंतजाम जो है वो कर चुकी होगी। मैं उसके बारे में ऑफिसर से अभी रिव्यू करूंगा, क्योंकि पिछले साल भी हम किए थे, काफी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, सब कुछ पीसफुल हुआ था। और उसके पश्चात मैं पूरा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने के बाद जो भी हमको आदेश देंगे उसका पालन करते हुए और ओल्ड सिटी और जहाँ भी गणेश के मंडप बैठाए हैं सबका हम दौरा करेंगे और उसका रिव्यू करेंगे। आने वाले दिनों में यहाँ पर जो भी लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे ट्रैफिक के इश्यूज हैं, ड्रग्स का इश्यू है, उसका सब हम रिव्यू करेंगे और आपको इत्तला करेंगे कि क्या क्या हम इसके बारे में स्टेप्स लेने वाले। साइबराबाद पुलिस ने यूपीआई फ्रॉड केस के सिलसिले में 13 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद सीसीएस पुलिस के पीएचबी पुलिस, माधोपुर पुलिस और नारसंगी पुलिस ने राजस्थान की 13 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। ये टोली बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स को धोखा देने में मुलव्विस बताई गई है। तकरीबन 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। पुलिस ने 1 करोड़ 72 लाख की नकद रकम और 50 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान भी जब्त कर लिया। ये टोली साइबराबाद, हैदराबाद और रचाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में सरगर्म थी। इस टोली की धोखाधड़ी से बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स को 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स की शिकायत पर सीसीएस पुलिस ने हुदूद कमिश्नरेट के पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर यह पर्दाफाश किया। बताया गया है कि ये टोली के कुछ अरकान हैदराबाद में क़याम करते थे, जबकि बाकी के लोग राजस्थान में थे। हैदराबाद में मौजूद लोग बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम से रुजू हुआ करते थे और फिर शोरूम का QR कोड राजस्थान में बैठे अपने साथियों को रवाना करते और जब उन्हें इलेक्ट्रॉनिक अशिया मिल जाती तो वो इसे फरोख्त कर देते। लेकिन इसके बाद ये टोली झूठी चार्ज बैक की शिकायत दर्ज कराती और रकम वापस हासिल कर लेती। पुलिस ने इस टोली के अरकान शोभराज, सुनील, लकराम, श्रवण, सोमराज, शिवलाल, रमेश, श्रवण, पप्पूराम, राकेश, रमेश और आलोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ MPJ और दूसरी तंजीमों की जानिब से बशीरबाग प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें तंजीम के लीडर ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा फिल्म की वजह से सिख भाइयों के जज्बात को
ठेस पहुंची है। उनका कहना था कि इस सिलसिले में रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को एक याददाश्त पेश की गई है। इन्होंने बताया है कि इस तरह की फिल्मों की वजह से पैदा होने वाले मसाइल के लिए हुकूमत रास्त तौर से जिम्मेदार होगी। इस मौके पर इन्होंने आदिलाबाद के वाकयात का जिक्र करते हुए बताया कि मुसलमानों की जायदाद, कारोबार और इमलाक को करीब 1 करोड़ रुपए मालियती नुकसान पहुंचाया गया। उनका कहना था कि रियासती कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने कोई रद्देमल जाहिर नहीं किया, जिससे ये शुबा होता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी मुलविस हो सकती है, क्योंकि हुकूमत ने मुआवजे का भी कोई ऐलान नहीं किया। इन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया कि वो अंदरून 1 हफ्ता मुआवजे का ऐलान करे और कातियों को गिरफ्तार करे। बसूरत दिगर ST, SC, BC और सिख बरादरी मिलकर बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। महकमा आबकारी ने हल्दी की पैकेट्स में गांजे की फरोख्त की रैकेट को बेनकाब किया। गांजा और दूसरे मंशियात के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के तनाजुर में अब नशीली अद्वियात की टोलियां नए हरबे इस्तेमाल कर रही है। आइसक्रीम में विस्की और चॉकलेट में गांजा भी मिलाया जा रहा है। बंजारा हिल्स में हाल ही में आइसक्रीम की स्टोर पर धावा किया गया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कमला हसन रेड्डी की क़यादत में एक्साइज टीम ने मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन को जारी रखा हुआ है। धूलपेट की साकिन नेहा भोई के पास से हल्दी की पैकेट में गांजे की 10 पैकेट जब्त किए गए हैं और इससे मजीद पूछताछ जारी है। टास्क फोर्स साउथ जोन और कालापत्थर पुलिस ने जुए के अड्डे को बेनकाब करते हुए 22 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कालापत्थर में वाक़ एक मकान पर जुआ खेला जा रहा था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने धावा किया। 22 अफराद गिरफ्तार हुए। उनके पास से 46,55,810 रुपए की नकद रकम जब्त कर ली गई। कालापत्थर पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर गणेश पंडालों से लड्डू की चोरी होने के वाकयात पेश आए हैं। इतवार को हैदराबाद के बाचुपल्ली प्रगति नगर में सारिक अपार्टमेंट में बनाए गए गणेश पंडाल में दाखिल हुआ और गणेश की मूर्ति से लड्डू चुराकर फरार हो गया। इस वाक़े का CCTV मंजर आम पर आया है। अपार्टमेंट के मकीनों की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। दूसरी तरफ तेलंगाना मेडचल केसरा के सिद्धार्थ कॉलोनी में भी गणेश मूर्ति के हाथ से लड्डू चुराया गया। इस वाक़े का भी CCTV मंजर आम पर आया है। पंडाल मुंतजमीन को होशियार रहने की जरूरत है। नारायणगुड़ा में वाक़े होटल में 20 से यरगमाल बनाई गई तालिबा को पुलिस ने आज़ाद करा लिया। बताया गया है कि तेलंगाना की भैंसा की साकिन तालिबा को इंस्टाग्राम पर बने इसके एक दोस्त की तरफ से नारायणगुड़ा की होटल लाया गया था और 20 दिनों के दौरान इसकी मुबैना इस्मत रेज़ी भी की गई। बताया गया है कि लड़की ने व्हाट्सएप के जरिए अपने वालिदैन को होटल का पता रवाना किया था। शी टीम्स ने मुतासरा लड़की के वालिदा की तरफ से शिकायत मिलने पर होटल का पता चलाया और लड़की को आज़ाद कराया। बताया गया है कि लड़की को 20 दिनों से होटल में रखा गया था। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। रियासत को मालियाती इस्तेहकाम देने फाइनेंस कमीशन से मजलिस की नुमाइंदगी, मरकजी मुहासिल से ज्यादा फीसद अदायगी की मांग। अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। पार्टी बदलने वाले अरकान असेंबली के सिलसिले में 4 हफ्तों में फैसला लिया जाए। रियासती असेंबली स्पीकर के दफ्तर को तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह। इंस्टीट्यूट का मकसद हैंडलूम टेक्नोलॉजी की तकनीक से मुताल्लिक जदीद तरबियत और तालीम फराहम करना है। बुनकरों के कर्ज मुआफ़ी की जिम्मेदारी हुकूमत पर, वज़ीर आला का खिताब। सीवी आनंद ने हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस की हैसियत से लिया जायजा। वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर। गणेश निमज्जन और मीलाद जुलूस के लिए मौसर इक़दामात को यकीनी बनाने का अज़्म। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स को चार्ज बैक के जरिए 4 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाली 13 रुकनी राजस्थानी टोली गिरफ्तार। 1 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जब्त। हल्दी के पैकेट्स में गांजे की फरोख्त का रैकेट बेनिकाब। 10 पैकेट जब्त। धूलपेट के खातून तहवील में। और हैदराबाद और इसके नवाही इलाकों में गणेश मूर्तियों से लड्डू चुराए जाने के वाक़यात। गणेश पांडाल सारिकों का आसान निशाना। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।